Hello, my dear students. So now let us start discussing your test 14, जिसमें जो टॉपिक्स आए हैं, एक है केमिकल काइनेटिक एंड दूसरा है आपका सबसे प्यारा टॉपिक जिससे आप मोस्टली केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आप मॉडर्न फिजिक्स में भी कवर करते हो. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन गाइस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो आपको यहाँ ढूंढनी है फॉल्स स्टेटमेंट. फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ. ऑफ कोर्स फोटोन की मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों है, हम डी ब्रोगलीज में पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं. कोई भी पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. इट हैज अ वेव नेचर आल्सो. स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्क इफेक्ट. बिल्कुल, स्पेक्ट्रल लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाना, दैट इज स्टार्क इफेक्ट. एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो बोलते हैं हम ज़ीमन इफेक्ट. दिस इज आल्सो ट्रू. Rydberg constant has a unit of energy. Indeed, it has a unit of energy, guys. I hope you all know that. And last but not the least, पढ़ते हैं statement. Frequency of emitted radiation from a black body goes from a lower wavelength to higher wavelength as temperature increases. तो स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहे हैं कि लैम्डा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जो वेवलेंथ एमिट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी वेवलेंथ बढ़नी चाहिए, विच इज फॉल्स. हमें पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो आप फिजिक्स में एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ते हो. तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स, बाकी सब करेक्ट हैं. तो विल मार्क आवर आंसर एज डी, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा उसमें से एमिट होने वाली वेवलेंथ डिक्रीज होगी, राइट? सो इंडीड द आंसर इज डी डोंकी. Now, the next question, radius of third orbit of lithium ion is x centimeter, then the de Broglie wavelength of electron in its first orbit. तो third orbit का radius आपको दिया है. So as per de Broglie's concept, the circumference of orbit 2 pi r is equal to n lambda, ये रहता है. Yes, as per de Broglie's concept. So third orbit की अगर मैं बात करूं, third orbit का radius दिया है x for lithium ion, right? And wavelength है lambda. So आपसे पूछा है the wavelength of electron for the first orbit. So lambda की ही वैल्यू पूछी है, एक ही वेव बनेगी फर्स्ट ऑर्बिट में, that is 2 pi x over 3, that is lambda. So आप जो आंसर यहाँ पर मार्क करेंगे बच्चों, that is A. Got it? So basic principle आपने यूज किया, 2 pi r is equal to m lambda. Circumference of the orbit is equal to n lambda. ये हमें डी ब्रोगली जी ने बताया था. Okay, now the question from chemical kinetics. A hypothetical reaction A2B2 gives 2AB. Follows the following mechanism. Mechanism लिखा है, first step fast है, second step slow है, third step भी fast है. तो overall reaction क्या होगा, order, right? So I hope you all know जो rate of reaction है, right? That depends upon the reactants. So rate of this reaction, overall rate is K into concentration of A2 raised to power order with respect to A2 and the concentration B2 raised to power this X plus Y is the overall order of the reaction. Now guys, आपको पता है जो मैकेनिज्म का स्लोएस्ट स्टेप होता है that is the rate determining step, right? Yes, so that is the rate determining step here. So जो rate of the reaction है वो कैसे define होगा? By this step, rate is equal to K into concentration of A into concentration of B2. Got it, guys? Yes. This is how you do it. Please check here. Rate determining step. Right? Overall order they are asking. What are the powers of A2 and B2? वो हमको निकालनी है यहाँ पर कि पावर क्या है A2 और B2 की, right? So this is हमने हटा दिया यहाँ से. ये हमारा जो slowest step of the mechanism है, sorry, this, right? Rate हमने पहले लिखा था. Now this is intermediate, as you can see here, guys. This is intermediate. So how can I replace this intermediate? I can replace this intermediate from the first reaction. You can see, guys, the first reaction, right? So that is equilibrium. Equilibrium constant for this first reaction is equal to concentration of A raised to power A upon concentration of A2. Got it, guys? Yes. Now, what is A? I can write A as under root of K into concentration of A2 at the equilibrium. So replace your, let me write it as K dash, this equilibrium constant as K dash, right? So K dash under root of K dash
A2, I replace this into V2. Right, this is how I can replace it. Yep, perfect. So this is another constant I will write as k double dash, that is A2 raised to power half because it is under root, and then this is V2. So the power of reactants in the rate expression, you add them, that will give you the overall order of the reaction. So half is the overall order of reaction with respect to A2, and V2 के with respect होगा, that is 1. राइट सो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन की कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, राइट, इनटू जो रिएक्शन में रिएक्टेंट है उनका जो पावर, दिस वे वी कैन राइट. So this x plus y is the overall rate, that is half plus 1, that is 3/2 is the overall rate of this order of this reaction. Got it guys? So you just replace the intermediate by reactant. Okay. Now again the question is from atomic structure. Which of the following represent 2s orbital? तो 2s orbital spherical shape, कितने nodes होंगे उसके अंदर? How many nodes are there? So total nodes कैसे calculate किए जाते हैं? n minus l minus 1 से radial nodes, l is the number of angular node, n minus 1 is the total node. So n is 2 minus 1. So जो total node है वो 1 है यहाँ पर. Radial node is 1 here, right? In 2s, radial node is 1. So radial node n minus l minus 1. N value is 2, l value is 0 because 2s minus 1. So we have one node, right? So size k represents the probability of finding the electron probability density. Now you have to look the graph where it is one node, right? कौन से ग्राफ में आपको एक नोड दिख रहा है? न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट, तो क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट न्यूक्लियस? दिस इज साइज स्क्वायर, प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज नॉट साइज स्क्वायर 4 pi r square, this is साइज स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ, राइट? सो देयर इज वन नोड हियर, यस, ये साइज स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ है. यहाँ ये गलती मत करना कि दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइज स्क्वायर 4 pi r square वाले ग्राफ नहीं है. सो अगर आपने ग्राफ्स अच्छे से किए हैं साई के साइज स्क्वायर के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर, so you know one node here and this type of graph it will look, right? So 2s graphical representation is this. यहाँ जो गलती आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप साइज स्क्वायर पे ध्यान ना दो, साई या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले ग्राफ आप कर दीजिए, right? So one radial node here, this is the node, this area represent node where probability of finding electron is 0. Now the question is which of the following graph is not for zero order reaction? में से कौन सा ग्राफ zero order reaction के लिए नहीं है? तो आपको T half versus A, concentration of reactant, X versus T, dx versus A minus X, and of course टाइम वर्सेस A माइनस एक्स के ग्राफ दिए हैं. तो उसके लिए आपको ये आना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है. रेट लॉ का एक्सप्रेशन फॉर 0, 1 एंड 2 ऑर्डर, concentration versus time का relation for all the order and T half के expressions. very 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 important guys. ये तो मतलब तुम्हारे दिमाग में एकदम से प्रिंट होने चाहिए, right? So आपसे पूछा था कि कौन सा जीरो ऑर्डर का ग्राफ नहीं है, तो आप इक्वेशंस को देख के, लॉग वाली इक्वेशन को देख के, this graph is not for zero order guys, right? This is for first order. Yep. So बाकी सब आप देख सकते हो. T half is directly proportional to A naught. Here you can see guys, right? AT minus A naught is equal to minus KT. So you all can see here the graphs, the relation you can directly proportional. Yes, okay. Now the question is find the wavelength of alpha line. Alpha line means first line of fund series. So for fund series N1 is 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? फिफ्थ पे. और फर्स्ट लाइन मींस पहली लाइन मतलब 6 to 5th जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, जो वेवलेंथ एमिट करेगा, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ फंड सीरीज, राइट? चलो तो फॉर्मूला हम रेडबर्ग का 1 by lambda is equal to r की वैल्यू इज गिवन टू यू, रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1 and 2 square. So n1 की वैल्यू इज 5, n2 की वैल्यू इज 6. Put it here without making any calculation mistake. Calculate the wavelength. तो रेडबर्ग फॉर्मूला यूज करते हुए रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी दी है आप लोगों को,
तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो अपनी जो वैल्यू है वेवलेंथ की. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आंसर इज डी डोंक. यू कैन चेक हियर सिंपली पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, रेडबर्ग्स इक्वेशन. Now the question is the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy of second excited state of helium positive ion in electron volt is. तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम. सो एनर्जी का फॉर्मूला यूजुअली बच्चों जो एनर्जी होती है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सॉल्व कर रहे होते हैं. क्वेश्चन में दी जाती है माइनस 13.6 राइट, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. नाउ आपसे पूछा गया है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मींस n is 3 एंड हीलियम है तो z is 2. So put these value here, putting the value of n equal to 3, the second excited state, right? And क्योंकि हीलियम है तो एटॉमिक नंबर होगा हमारा 2. तो बस डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर एज -6.04 गाइस. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, एकदम से डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए. यस, गॉट इट गाइस? Now the question is, if the shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is x, shortest wavelength Lyman series की x है, right? So पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं 1 by lambda is equal to Rydberg's constant 1 over z square because हाइड्रोजन और हीलियम की बात की है, n1 square minus 1 over n2 square. So ये है रेडबर्ग का फॉर्मूला. अब आपसे कहा है हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम Z is equal to 1 एंड क्योंकि लाइमन सीरीज की बात की गई है, फॉर लाइमन सीरीज N1 is 1 एंड N2, और आपको कहा गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब जिसकी एनर्जी मैक्सिमम हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट शेल पे आएगा, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, राइट? सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 over lambda is equal to, ये जो हमारे द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो दी है वो x दी है, तो ये हो गया r 1 का स्क्वायर 1 over 1 स्क्वायर माइनस 1 over इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 by x. ये हुआ. यस, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू जो दी है दैट इज x. सो तो आप देख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 by x. Got it guys? This is what you get here. You can please check. Now the longest wavelength of Paschen series, again for Paschen series of helium ion. Helium ion के लिए Z की वैल्यू is 2. Z is 2. लाइमर, बाल्मर, पास्चन सीरीज है तो N1 की वैल्यू 3 और N2 की वैल्यू, क्योंकि आपको कहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे आएगा you will get the longest wavelength. Now again in the same formula put Z equal to 2, N1 equal to 3 and N1 equal to 4 and R की वैल्यू तो आपको पता ही है. You will get your answer 1 by lambda in terms of X, so you will get your answer as C. वही रेडबर्ग का फॉर्मूला बस 2 बार अप्लाई करना है, right? So that you can get your final answer in terms of X. So you can see here guys. Now the question from chemical kinetics, a standard question सबको आना चाहिए. तो आपको कहा है for the reaction 2A plus B gives you the values of initial rate constant the reaction are given. आपको rate का एक्सप्रेशन निकालना है. तो rate of the reaction is equal to rate constant, concentration of A raised to power X, concentration of B raised to power Y. This is how you will do it guys. And then अब हम क्या करेंगे आगे? यस गाइस, अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, सो दैट वी कैन गेट द रेट का एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस x एंड y आर द ऑर्डर. चलो लेट्स सी. कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b कांस्टेंट सेम रखिए, और अगर हम a की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं 0.05 से 0.1 कर दी तो रेट भी डबल हो जाता है. यस, अगर B की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा जाए और A की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया जाए बच्चों, डबल, तो रेट भी डबल हो रहा है. इसका मतलब X की वैल्यू क्या आ गई, यहां से X की वैल्यू आ गई 1 कि अगर A की वैल्यू डबल तो रेट भी डबल. यस, सो द पावर ऑफ
concentration of A is 1, that X is 1. Order of reaction with respect to A is 1. Now let's calculate with respect to B. So अब B के लिए बात करते हैं. Okay guys, so हम ये वाला डेटा उठा लेते हैं B के लिए. Let's take out this data. Yes, so rate of reaction as per the second data is K into concentration of A, that is 0.1 into concentration of X हो गया, B that is Y, right guys? This is now same rate of reaction as per the third data. This is 0.2 with respect to A, that is X, and 0.1 with respect to Y. Yes, अब आपको पता है कि x की वैल्यू 1 है एंड रेट की वैल्यू भी आपको पता है. दिस इज 0.09 एंड दिस इज 0.7. सो ये आ गई दो इक्वेशंस जहां आपको पता है कि जो x की वैल्यू है दैट इज 1. डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशन यू विल गेट योर y. राइट गाइस, बस दो इक्वेशन को डिवाइड करो. x की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 है, k से k विल गेट कैंसल आउट एंड यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ y. सो वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी? 2. So this is the rate. With respect to A, order of reaction is 1, and with respect to B, it is 2. Overall rate of the order of the reaction is 3, guys. You can check here. Very simple. Standard question है ये kinetic का, तो सही होना बनता ही है बच्चों. Now the next question is for the following graphs. We can see the graphs rate versus time independent of time rate. T half is directly proportional to concentration. एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डीके कर रही है. कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. तो आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्राफ किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है, राइट? तो टू नो दिस यू शुड नो ये सारे एक्सप्रेशन, राइट? सो रेट इज कांस्टेंट. दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट? दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर. This is also for zero order. T half is directly proportional to concentration. किसका होता है? Zero order. Third reaction, exponential decay with time concentration का किसके लिए रहता है? First order reaction के लिए, right? Concentration constant है, time जो मर्जी है, तो equilibrium condition को represent कर रहा है, and rate is directly proportional to concentration, guys. Again, it is showing first order, right? Rate is directly proportional to concentration. You can see here, independent of concentration, directly proportional. So हम क्या आंसर मार्क करेंगे इधर? तो हम मार्क करेंगे कि सेकंड है फॉर जीरो ऑर्डर, थर्ड एंड फिफ्थ फॉर फर्स्ट ऑर्डर. नो अदर ऑप्शन मैचेस हियर बिकॉज़ बाकी सब में सेकंड थर्ड ऑर्डर दिया है. तो विल मार्क आवर आंसर एज ए फॉर एप्पल, राइट? सो दिस इज द आंसर. You can see it. Okay. Now the question is from the following set of quantum number states which are not possible. कौन सा possible नहीं है देखते हैं. n की वैल्यू 0 तो l की वैल्यू क्या होगी अगर n इज 0? यस गाइस, इफ n इज 0, n 0 मतलब n 0 का मतलब क्या हुआ? n 0 मींस कोई भी शेल नहीं. यस, कोई सेंस ही नहीं बने ना. n 0 मींस देयर इज नो शेल गाइस. यस, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. तो भाई ये तो गलती हो गया. अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल. m की वैल्यू भी 0 हो सकती है और s की वैल्यू 1 हो सकती है. n इक्वल टू 1 2 3 और l की वैल्यू क्या होती है? 0 से n माइनस 1 तक. और m की वैल्यू क्या होती है? माइनस l टू 0 देन टू प्लस l. नाउ अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है बिकॉज l इज इक्वल टू फ्रॉम 0 अप टू n माइनस 1, राइट? ओके, ये भी गलत हो गया. n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m की वैल्यू प्लस 1 नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि अगर l की वैल्यू 0 है तो m भी 0 होगा. नाउ नेक्स्ट, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, और अगर l की वैल्यू 0 है तो ये भी गलत हो गया. m की वैल्यू 0 ही होगी. n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती बिकॉज n की वैल्यू अगर 2 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज आर 0 एंड 1. ओके, लास्ट, n वैल्यू इज 2, l वैल्यू इज 1, करेक्ट. m कैन बी माइनस 1, 0 और प्लस 1, तो m भी 0 हो सकता है. तो दिस इज करेक्ट. तो आपसे पूछा गया है नॉट पॉसिबल कितने हैं. तो 1 2 3 4 5, जो 5 है वो नॉट पॉसिबल है, 2 आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स. So you'll mark your answer as 5. 5 are the invalid set or not correct set. Okay, now the next question is calculate the wavelength in Armstrong of the photon that is emitted when an electron in Bohr's orbit n equal to 3 returns to n equal to 1
in the hydrogen atom, the ionization potential of ground state is this. So basically इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी एमिट करेगा। एंड आई एम श्योर आप सबको पता है फॉर्मूला क्या है, सम कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन क्या यूनिट हम यूज कर रहे हैं, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। सो दो शेल्स में जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा, ये E2 है, ये E1 है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट, सपोज दिस n इक्वल टू 3 एंड दिस n इक्वल टू 1, तो जो भी एनर्जी वो एमिट करेगा, वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, दैट इज द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ दीज टू। लेट मी मार्क इट एज 3 ओनली सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो E3 माइनस E1, इन दो शेल्स में जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी से कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वो एमिट करेगा, राइट गाइस? यस, यहीं से हमारा आया था जो रिडबर्ग फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा, यस, इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो बस वही है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। एनर्जी कैलकुलेट करके hc बाय लैम्डा करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको दिल करे, बस यूनिट का आपको ध्यान रखना है। तो दो एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन हो रही है, राइट, एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट कितनी एनर्जी इमिट होगी। तो ये देखो दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास E2 माइनस E1 की ये वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, बिकॉज हमें लैम्डा बताना है और एंगस्ट्रॉम में बताना है, बस यूनिट का ध्यान रखें, राइट। सो यू कैन सी हियर गाइस, एनर्जी की वैल्यू हमने पुट करी है, n1 माइनस n2, I hope you get your answer guys, yes। So this is simply putting the values, दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपको एनर्जी दे देगा जो एमिट होगी, एंड जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। लैम्डा यू कैन कैलकुलेट, बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये चैप्टर अच्छे से किया होगा। काइनेटिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और दोनों में ही कुछ ऐसे एरियाज है जहां से क्वेश्चन आता है, जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वांटम नंबर्स, डी ब्रोगली से, एंड वहीं आपका जो काइनेटिक है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, along with yes Arrhenius theory also. So that's all for today guys, thank you so much, see you in another session।